بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائن۔ بھارت کا جھوٹا دعویٰ، پاکستان کی جانب سے ڈرون حملہ۔ بھارت نے الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان نے ان پر ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ حملے کے بعد بھارت نے اپنے جدید ترین S-400 ڈیفنس سسٹم کو فعال کر دیا۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ تمام ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا گیا۔ حملے کے بعد مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ عوام کو ہدایات دی گئی ہیں کہ کوئی روشنی نہ جلائے اور محفوظ مقامات پر رہے۔ پاکستان نے بھارت کے اس جھوٹے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کا رد عمل، ڈرون حملے سے مکمل انکار۔ پاکستان نے بھارتی الزامات کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے کوئی ڈرون بھارت نہیں بھیجا۔ پاکستانی میڈیا نے بھی اس دعوے کو جھوٹا قرار دے دیا۔ حکومت پاکستان کا موقف سامنے آیا ہے، بھارت عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ جب ہم حملہ کریں گے تو دنیا کو نظر آ جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں بھارت خود حملہ کر کے پاکستان پر الزام عائد کر رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مکمل بلیک آؤٹ، سائرن کی گونج۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ تمام علاقوں میں بجلی منقطع کر دی گئی اور سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ عوام کو گھروں میں رہنے اور روشنی بند کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ سینکڑوں سیکیورٹی فورسز سڑکوں پر گشت کر رہی ہیں۔ یہ اقدامات بھارتی حکومت کے حملے کے خدشے کی وجہ سے کیے گئے۔ عوام میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ F-16 لڑاکا طیارہ اور ڈرون مار گرایا۔ بھارتی میڈیا نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے کہ ایک پاکستانی F-16 لڑاکا طیارے کو مار گرایا گیا ہے، ساتھ ہی کئی ڈرونز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ یہ بیانات بھارتی میڈیا کے مختلف چینلز پر نشر کیے جا رہے ہیں، تاہم پاکستان کی جانب سے اس دعوے کی تردید کر دی گئی۔ یہ دعوے زمینی حقائق سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جنگی جنون پھیلانے کی کوشش ہے۔ بھارت کے حملے کی تیاری، رافیل اور میزائل تیار۔ بھارتی افواج نے ممکنہ جوابی حملے کی مکمل تیاری شروع کر دی۔ رافیل لڑاکا طیارے اور دیگر جنگی سازوسامان حرکت میں لایا جا رہا ہے۔ مختلف شہروں میں فوجی تنصیبات کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ ایئر بیسز پر ہنگامی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ممکنہ طور پر اگلے 24 گھنٹوں میں حملہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ پاکستان نے جوابی کارروائی کی دھمکی جاری کر دی۔ بھارتی شہروں میں ایمرجنسی، اسکول کالج بند، امتحانات ملتوی۔ بھارت کے مختلف علاقوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے، امتحانات ملتوی کر دیے گئے اور طلبہ کو گھروں میں رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام ریاستی اداروں کو سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ تعاون کی ہدایات کی گئی ہیں۔ موبائل فون بند رکھنے کے بیانات جاری کیے جا رہے ہیں۔ بھارتی حکومت کسی بھی ممکنہ کارروائی کے لیے قوم کو تیار کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پر پابندیاں، تصاویر اور ویڈیوز شیئر کرنے پر پابندی۔ بھارتی حکومت نے سوشل میڈیا پر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ عوام کو ہدایات کی گئی ہیں کہ فوجی نقل و حرکت کی تصاویر شیئر نہ کریں۔ میڈیا کو بھی محدود کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی حساس خبر باہر نہ جا سکے۔ حکومت نے ممکنہ حملے سے پہلے مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر سمیت دیگر علاقوں میں انٹرنیٹ سروس متاثر ہے۔ یہ سب کچھ جنگی تیاریوں کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی، جنگ کے خطرے پر دنیا کا رد عمل نہ درد۔ پاکستان بھارت کی کشیدگی بڑھنے کے باوجود عالمی طاقتیں خاموش۔ کسی بھی ملک یا ادارے کی جانب سے فوری رد عمل نہیں آیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بھی کوئی رسمی بیان سامنے نہیں آیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ خاموشی خود ایک خطرہ ہے۔ جنگی صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اگر بروقت مداخلت نہ کی گئی۔ دنیا کو فوری سفارتی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی عروج پر، خطے میں جنگ کے بادل۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے بعد خطے میں جنگ کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ دونوں ممالک کی سرحدوں پر فوجی نقل و حرکت میں تیزی آ چکی ہے۔ بھارتی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان نے جوابی کارروائی کی تو اسے تباہ کن انجام دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب پاکستان کی خاموشی سے بھارت کی جارحیت کو تقویت مل رہی ہے۔ بھارت نے عندیہ دیا ہے کہ یہ لڑائی ایک بڑے آپریشن کی ابتدا ہے
है, आलमी बरादरी की तशवीश के बावजूद भारत जंग रोकने पर आमादा नहीं। ईरान और सऊदी अरब की सालसी नाकाम, भारत ने जंग बंद करने से इनकार कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा हंगामी दौरे पर भारत पहुंचे। दोनों रहनुमाओं ने जंग रोकने और बातचीत के जरिए मसले को हल करने की अपील की। भारत ने इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह पैगाम जारी किया है कि जंग जारी रहेगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमारा मकसद अब मुस्तकिल तौर पर ख़तरा ख़त्म करना है। उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया तो हम कई गुना सख्त जवाब देंगे। सालसी की कोशिशें नाकाम होने पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी, भारत के बड़े हमले का अंदिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हुकूमत ऑपरेशन सिंदूर 2 पर काम कर रही है। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 15 से जायद शहरों पर बेक वक्त बड़े हमले का मंसूबा है। ड्रोन, मिसाइल और अफवाज के जमीनी दाखिले की तैयारी मुकम्मल बताई जा रही है। पहला मरहला महज पाकिस्तानी दफाई निज़ाम को जांचने के लिए था। अब असल कार्रवाई जल्द मुतवक्का है, जिससे खित्ता जंग की लपेट में आ सकता है। अवामी सतह पर तशवीश और खौफ बढ़ता जा रहा है। अमरीकी सफारत खाने की हदायत, शहरी पाकिस्तान का सफ़र न करें। अमरीकी हुकूमत ने अपने शहरियों को पाकिस्तान का सफ़र न करने की हदायत जारी कर दी। बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद बंद हैं और ख़तरात बढ़ चुके हैं। जो लोग पहले से पाकिस्तान में मौजूद हैं, इन्हें फौरी तौर पर महफूज मकामात पर जाने की तलकीन की गई है। ये कदम भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती जंगी कशीदगी के पेश नज़र उठाया गया है। अमरीकी इंटेलिजेंस को खदशा है कि हालात किसी भी वक्त मुकम्मल जंग में बदल सकते हैं। ये इकदाम खित्ते में मुमकिना इंसानी बहरान की पेशबंदी के तौर पर लिया गया है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तनज़ली, भारत की हिकमत अमली वाज़ेह। भारत की हिकमत अमली पाकिस्तान की मैशियत को बतदरीज कमज़ोर करना है। जंगी माहौल पैदा करके भारत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान से दूर कर रहा है। ड्रोन हमले और गैर यकीनी सूरत हाल मैशियत के लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। भारत का हदफ है कि तवील मुद्दती दबाव के जरिए पाकिस्तान को इक्तिसादी तौर पर गैर फाल किया जाए। सरमायाकारी का बहाव रोकने से पाकिस्तानी मार्केट मजीद दबाव में आ जाएगी। ये एक गैर रवायती जंगी हिकमत अमली है जिसके असरात जल्द वाज़ेह होंगे। इसराइली ड्रोन और अमरीकी ताउन खित्ते में खतरनाक इत्तेहाद कायम। हालिया हमलों में भारत और इसराइली साख्ता ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। अमरीका और इसराइल इस मंसूबे में भारत के साथ शरीक हैं। ये इत्तेहाद जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए खित्ते में अस्करी बर्तरी हासिल करने का मंसूबा रखता है। ड्रोन हमले दरअसल पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम की जांच के लिए किए गए। अमेरिका ने भारत को इक्तिसादी राहतें देकर मुकम्मल सपोर्ट का अंदिया दिया है। ये जंग सिर्फ दो मुल्कों के बीच नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी इत्तेहादों का इम्तिहान बन चुकी है। भारत का फेजवार प्लान, कई मरहलों पर मबनी मुकम्मल जंग की तैयारी। ज़राए के मुताबिक भारत ने अपनी जंगी हिकमत अमली को मुख्तलिफ मराहल में तकसीम कर दिया है। हर फेज में मखसूस हदाफ हमले और रद्द अमल की मनसूबाबंदी शामिल है। पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे फेज की तैयारी हो रही है। मुस्तकबिल में मजीद मराहल भी मुतवक्का हैं जिनमें बरी अफवाज का इस्तेमाल मुकम्मल है। भारत इस मरतबा जंग के बाद वापसी का इरादा नहीं रखता बल्कि कब्जा बरकरार रखने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। ये सूरत हाल खित्ते में तवील मुद्दती तनाज़ा की बुनियाद बन सकती है। रूस यूक्रेन जंग जैसा इंजाम पाकिस्तान के लिए आलमी हमायत महदूद। तजियाकारों का कहना है कि भारत पाकिस्तानी तनाज़ा रूस यूक्रेन जंग जैसी सीमत अख्तियार कर रहा है जैसे रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंग से कबल आलमी साज़शों को मुस्तरद किया। भारत ने भी वही रवश अपनाई है। फ़र्क यह है कि यूक्रेन को यूरोप की हमायत हासिल थी जबकि पाकिस्तान आलमी हमायत से महरूम है। दुनिया के 90 से 95% ममालिक इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान तनहा होता जा रहा है जो ख़तरे को और भी बढ़ा रहा है और एक गैर मुतवाज़न जंगी माहौल पैदा कर सकते हैं जो इंसानियत के लिए तबाहकुन होगा।
भारत ने आईपीएल का मैच बहाना बनाकर खत्म कर दिया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने धर्मशाला में जारी आईपीएल का मैच स्टेडियम में तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर बंद करवा दिया। जुमेरात के रोज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान होने वाले मैच में सिर्फ 10.1 ओवर्स करवाए गए थे कि स्टेडियम की लाइट्स बंद कर दी गई और लाइट्स बंद करने के 11 मिनट बाद तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर मैच के खत्म किए जाने का ऐलान कर दिया गया। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया और जर्मनी समेत मुतअद्दिद ममालिक का इजहार तशवीश, बातचीत का मशवरा। पाक भारत कशीदगी पर बरतानिया और जर्मनी समेत मुतअद्दिद ममालिक ने तशवीश का इजहार करते हुए दोनों ममालिक को बातचीत का मशवरा दे दिया। बरतानिया के वज़ीर आज़म के स्टारमर ने कशीदगी में कमी के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत का मशवरा दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का आगाज। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी खून रेज जंग में एक अहम पेशरफ्त सामने आ गई, जहां दोनों ममालिक ने आज से जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। ये जंगबंदी 10 मई की निस शब तक जारी रहेगी। इस आर्जी सीजफायर को एक अहम सफारती कोशिश करार दिया जा रहा है, जिसका मकसद मुस्तकबिल में अमन कायम करने की राहें हमवार करना है। अमेरिका का एक और सुपर हार्नेट जंगी तैयारा रेड सी में गिर कर तबाह। अमेरिकी बहरी बेड़े यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक FA-18F सुपर हार्नेट जंगी तैयारा रेड सी में गिरकर तबाह हो गया। पेंटागन के मुताबिक ये वाकया मंगल के रोज उस वक्त पेश आया जब तैयारे का लैंडिंग हॉग वायर को पकड़ने में नाकाम रहा, जिसके नतीजे में तैयारा कंट्रोल से बाहर होकर समंदर में जा गिरा। भारतीय हमलों पर पाकिस्तानी अवाम शदीद गुस्से में हैं। वज़ीर आज़म की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से गुफ्तगू में भारत के बिला इख्तियार इक़दामात और हमलों पर पाकिस्तान के अवाम के शदीद गम और गुस्से से आगाह करते हुए कहा है कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल शाम अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोन पर राब्ता किया और इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत की। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की मॉस्को में अहम मुलाकात, अमेरिका को सख्त पैगाम दे दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने जुमेरात को मॉस्को में होने वाली एक अहम तकरीब में शिरकत की, जिसमें दूसरी जंग अजीम में नाजी जर्मनी की शिकस्त की 80वीं सालगिरह मनाई गई। पुतिन ने इस मौका पर यूक्रेन जंग को न्यू नाजीज़म के खिलाफ एक नई जदोजहद करार देते हुए कहा कि रूस और चीन तारीखी सच्चाई की हिफाजत के लिए मुत्हिद हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों ममालिक जदीद दौर के नाजीज़म और अस्करियत पसंदों के खिलाफ खड़े हैं। हमास के साथ जो किया वो ईरान मत भूले, इसराइल ने ईरान को खबरदार कर दिया। इसराइल के वजीर दिफा इसराइल काटिज का जुमेरात 8 मई को कहना था कि वो ईरानी क़यादत को खबरदार करता है जो हौसी दहशतगर्द तंजीम की माली मावनत कर रही है, इसे असला फराहम कर रही है और इसे इस्तेमाल कर रही है। यमन के ईरान नवाज हौसी बागियों के मिसाइल हमले के नतीजे में तेल अवीव के करीब वाक़या इसराइल के बेन गोरियन हवाई अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा था। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हौसियों के ज़ेर कब्जा दारुल हुकूमत सीना के हवाई अड्डे पर और शहर के गिरदोनवा में कायम पावर स्टेशन पर हमले किए थे। गजा में इसराइली बमबारी जारी, मजीद 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। और मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये हमले रहायशी इलाकों, मार्केटों, रेस्टोरानों और खैमा बस्तियों पर किए गए। गजा के शुमाली इलाके बैतलहिया में रयान खानदान के घर पर बमबारी की गई, जिसमें 3 अफराद शहीद हुए। यह हमला तिल अल रबिया स्कूल के करीब किया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।